Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and in the last video we have seen the different concept about the machining. We are covering the topic machining. So first we revise the some important concept of the last lecture. After that we will begin the new topics of the today's lectures. Machining. Machining. What is that? We have seen that different concept of machining, that is what is we have seen the machinability index, that is the ratio of speed of a test workpiece upon speed of a standard workpiece. Speed of a test workpiece upon speed of a standard workpiece. And we are using magnesium, and we have also seen that we are using magnesium, selenium, silicon, sulfur, calcium, and phosphorus. We have seen that we are using magnesium, selenium, silicon, sulfur, calcium, and phosphorus for increasing the machinability of steel. Okay, and after that we have seen the milling. After that we have seen the milling operations. After that we have seen the milling operations. Following are the different types of milling cutter. Following are the different types of milling cutters. Okay, first one is slab or plain milling cutter. Slab or plain milling cutter. Face milling cutter, end milling cutter, and straddle milling cutter, and gang milling cutter. We have already seen the concept of these all milling cutters, and we have also learned in depth of all these different milling cutters. Okay, after that we have seen the difference between up milling and down milling. Okay, these we have already covered these. In the last videos. Okay, after that we have seen the difference between up milling and down milling. After that we have seen the concept between up milling and down milling. Okay, यहाँ तक क्लियर सभी को? उसके बाद हमने क्या देखा था? We have also seen the calculation of derivation of maximum chip thickness and average chip thickness. We have seen the derivation of we have seen the calculation of maximum and average chip thickness. We have seen the calculation of maximum and average chip thickness. What is maximum chip thickness? What is maximum chip thickness? Maximum chip thickness is equal to
T max is equal to 2f upon nz under root of small d upon capital D. Okay, small d upon capital D. Okay, after that we have seen the average chip thickness. After that we have seen the average chip thickness. T average equal to f upon nz under root of स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. यहाँ तक हमने देख लिया मैक्सिमम चिप थिकनेस और एवरेज चिप थिकनेस. यहाँ तक हमने कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज ग्राइंडिंग. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज ग्राइंडिंग operation. So please note down the subheading as a grinding operation. Please note on the subheading as a grinding operation. Grinding operation. Okay. Please note the subheading as a grinding operation. So what is the grinding operation? Just a second. Grinding operation. What is the grinding operation? Grinding is an abrasive machining process. Grinding is an abrasive machining. Grinding is an abrasive machining process. First note down the definition, then we will discuss. Grinding is an abrasive machining process which is mainly used for surface finishing operation. विच इज ग्राइंडिंग का हम लोग मेनली यूज कहाँ करते हैं? सरफेस फिनिशिंग के लिए. ठीक है. विच इज मेनली यूज्ड फॉर सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, which is mainly used for surface finishing operation, but it can also be used for other machining. हम लोग grinding operation का mainly use surface finishing के लिए करते हैं, but grinding operation का हम लोग different use में भी ला सकते हैं. वो सब क्या है? finishing operation, but it can also be used for other machining process, such as first one is descaling and deburning. Descaling and deburning. Second one is slitting. These are the different machining processes जिसमें हम लोग grinding operation का यूज करते हैं. ठीक है. Slitting and parting. Third one, for producing slots and keyways. For producing slots and keyways, a small depth. Okay. Fourth one is for producing single point cutting tool. Fourth one is for producing
single point cutting tool। यहाँ तक क्लियर। एंड एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फॉर शार्पनिंग द कटिंग एज। जस्ट अ सेकेंड, पावर शट डाउन इशू है बट मैं मैनेज करता हूँ। So what we have seen, for sharpening the cutting edges। Okay, these are the different uses of grinding। अब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इसे मैं रब करता हूँ। ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रिड्स। ग्रिड्स मतलब छोटे छोटे, ग्रिड्स का हिंदी अगर आप लोग डिक्शनरी में देखिए छोटे छोटे कण या फिर छोटे छोटे दाने, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ द ग्राइंडिंग wheel consist of a large number of grids। The grinding wheel consists of a large number of grids। each of the grids हर एक ग्रिड्स क्या होता है, हैज वेरी हॉट हार्डनेस एंड वेरी हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन के प्रति काफी अच्छा रेजिस्टेंस रहता है हर एक ग्रिड्स का। तो नोट डाउन कीजिए, ईच ऑफ द ग्रिड्स हैव वेरी हाई each of the grids have very high hot hardness and very high resistance to corrosion and very high resistance to corrosion chemical reaction and wear। Okay, so each of the grids have very high hot hardness and very high resistance to corrosion, chemical reaction and wear। यहाँ तक क्लियर। हर एक ग्रिड्स के पास क्या रहता है आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इफ द ग्रिड्स ऑफ द व्हील आर विजुअलाइज्ड एज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, then it can be observed that the rake angle vary from plus 40 degree to minus 60 degree
अगर एक ग्रिड को हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एज्यूम करते हैं तो उसका रेक एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, +40 डिग्री टू -60 डिग्री। नोट डाउन करिए, इफ द ग्रिड if the grids if the grids of wheel are visualized if the grids are visualized as single point cutting tool, then it can be observed that their rake angle vary between +60 -60 डिग्री। तो अगर हम किसी भी ग्रिड व्हील को कैसे विजुअलाइज करेंगे, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उस ग्रिड का रेक एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, +40 डिग्री टू -60 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे बात करेंगे अब। यहाँ पे हमने नहीं दिख रहा हो तो ये वेरी लिखा हुआ है, VARY। ओके, अगर ये विजिबल नहीं हो तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन करवा दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग डायग्राम की। ग्राइंडिंग आखिर किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये हमारा डायग्राम अच्छे से नोट करिए, क्योंकि मेजर कंसेप्ट यहाँ से हम लोग समझ में आ जाएगा। ग्राइंडिंग का जो भी हमारे पास मेजर कंसेप्ट है। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का मार्कर लाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये हमारा सरफेस कौन सा है, एक्सपोज्ड लेयर ऑफ द ग्रिड। दिस वन इज द एक्सपोज्ड लेयर ऑफ द ग्रिड, सॉरी, exposed layer of
ग्रिड्स, एक्सपोज लेयर ऑफ ग्रिड्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर कुछ तीसरा लेयर, तो ये लेयर हमारा क्या है, ये लेयर क्या है, अनएक्सपोज्ड लेयर, अनएक्सपोज्ड लेयर, ये हमारे पास क्या है, अनएक्सपोज्ड लेयर। ओके, इसके बाद बात कर ले, तो ये जो मैंने इन दोनों ग्रिड के बीच में हमने जो कुछ मटेरियल लगाया है वो क्या है, सुटेबल बॉन्डिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या है, सुटेबल, इसके ऊपर भी कुछ लेयर होगा, इसके ऊपर भी कोई लेयर होगा, तो ऐसे लेयर बाय लेयर रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सुटेबल बॉन्डिंग एजेंट, सुटेबल बॉन्डिंग सुटेबल बॉन्डिंग एजेंट। ठीक है, ओके। रबिंग होने के बाद ये एक्चुअली में रेड कलर से मुझे बनाना चाहिए था, बट रेड मार्कर अवेलेबल नहीं है तो मैंने ब्लू से बना दिया। ये जो हमारे पास है वो क्या है, रेड हॉट चिप कमिंग आउट। ग्राइंडिंग करते टाइम रेड हॉट चिप हमारा बाहर की ओर आती है, तो वही यहाँ पे मैंने शो किया है, रेड हॉट चिप, रेड हॉट चिप coming out, red hot chip coming out। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब सीयरिंग की बात करें तो कैसे हमारा ग्राइंडिंग हो रहा है। ओके, ये जो ग्राइंडिंग हो रहा है यहाँ पे सीयरिंग पहले होता है। जब हमारा पॉजिटिव रेक एंगल रहेगा तो कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे, सीयरिंग एक्शन। जब हमारे पास पॉजिटिव रेक एंगल होगा तो हमारे पास कौन सा एक्शन होगा, सीयरिंग का उससे थोड़ा कम हमारे पास यहाँ पे रेक एंगल, उससे ओके। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हमारा व्हील ब्लंट होने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव रेक एंगल से निगेटिव रेक एंगल की तरफ वो व्हील हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव रेक एंगल से निगेटिव रेक एंगल की तरफ हमारा व्हील जा रहा है। तो सीयरिंग के बाद कौन सा एक्शन होता है, प्लॉइंग। सीयरिंग के बाद हमारे पास कौन सा एक्शन होता है, प्लॉइंग। सीयरिंग के बाद हमारे पास कौन सा एक्शन होता है, प्लॉइंग। ओके, सीयरिंग के बाद हमारे पास प्लॉइंग। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, रबिंग। रबिंग निगेटिव रेक एंगल, निगेटिव रेक एंगल और ब्लंट व्हील, निगेटिव रेक एंगल और ब्लंट व्हील। यहाँ तक क्लियर। सीयरिंग, प्लॉइंग एंड रबिंग, these 3 type of action
वी आर यूजुअली सी इन द ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये डायग्राम से काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक के बाद एक लेयर होता है। जब हमारा रेक एंगल पॉजिटिव होता है तो कौन सा एक्शन होता है? शियरिंग एक्शन होता है। धीरे धीरे हमारा रेक एंगल पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ता है तो प्लॉइंग एंड रबिंग एक्शन होने लगते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, रेड हॉट चिप कमिंग आउट ऑफ द व्हील ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, रेड हॉट व्हील, प्लीज नोट डाउन, red hot red hot red hot chips red hot chips carrying out of wheel out of wheel due to centrifugal action red hot chips carrying out of the wheel due to centrifugal action। यहाँ तक के लिए सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की तरह रेड हॉट व्हील एक्ट करता है। ठीक है, अब एक और नोट पॉइंट यहाँ डाल के लिखिए, एक और पॉइंट नोट डाउन करके लिखिए। इसे मैं रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और पॉइंट नोट डाउन करके लिखिए, रेड हॉट चिप्स, ये तो मैंने नोट डाउन करवा दिया था। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट नेक्स्ट नोट पॉइंट डालना है, सॉफ्ट wheels are used to grind hard material. Soft wheels are used to grind hard material and hard wheels are used to grind soft material. ओके, अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? सॉफ्ट व्हील को हम लोग ग्राइंड करते हैं हार्ड मटेरियल के लिए और हार्ड व्हील को हम लोग ग्राइंड करते हैं सॉफ्ट मटेरियल से। हार्ड मटेरियल को हम लोग किससे ग्राइंड करते हैं? सॉफ्ट व्हील से, एंड सॉफ्ट मटेरियल को हम लोग ग्राइंड करते हैं हार्ड व्हील से। ओके, अब ऐसा इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि बॉन्ड अगर हम लोग सॉफ्ट व्हील हार्ड मटेरियल के ऊपर रब करें तो इजीली हमारा बॉन्ड जो है सो कम होगा एंड इजीली वो रिमूव हो पाएगा। इजीली उसका जो ग्रिड्स है, सॉफ्ट व्हील का जो ग्रिड्स है इजीली, क्योंकि हार्ड मटेरियल पे रब करने पे क्या होगा, हमारा जो ग्रिड्स है सो इजीली रब हो चुका रहेगा, मतलब ब्लंट व्हील में कन्वर्ट हो गया होगा। तो उसे फ्रंट पे जो हमारा एक्सपोजर लेयर ऑफ द ग्रिड है उसे हटना जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग सॉफ्ट व्हील का यूज करते हैं। जो हमारा जैसे जैसे ग्रिड ब्लंट होता जाए वैसे वैसे न्यू हमें सरफेस मिलता जाए, इससे क्या होगा, ग्राइंडिंग अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मैंने वहां पे अलग अलग टाइप ऑफ शेयरिंग एक्शन और प्लॉइंग एंड रबिंग का बात किया था, उसके लिए मैं एक नोट पॉइंट दे रहा हूँ आप लोगों को, नोट डाउन कीजिए। those grades which have those grades
which have favorable geometry. Those wheel grids which have favorable geometry will remove chips through favorable geometry will remove chips through shearing action but those with very high negative rake angle rake angle will either rub the workpiece or will plow the workpiece. Will either rub the workpiece or will plow the workpiece, लीडिंग टू द लेटरल फ्लो ऑफ मटेरियल. उससे क्या होता है, प्लॉइंग से लेटरल फ्लो हमारे मटेरियल में दिखना शुरू हो जाता है. लीडिंग टू द लेटरल फ्लो ऑफ मटेरियल, वर्क पीस लीडिंग टू लेटरल फ्लो ऑफ मटेरियल. ओके, यहां तक सभी चीज क्लियर. यहां तक हम लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में. ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हमारे पास होनी चाहिए समझने में हम लोग को. आगे बात करेंगे आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स. आगे बात करेंगे हम लोग आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. आगे बात करेंगे हम लोग आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. यहाँ तक क्लियर. तो हमारा कुछ आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील होता है, मतलब व्हील के ऊपर कुछ डेजिग्नेशन लिखे रहते हैं. उसका क्या मतलब है उस डेजिग्नेशन का, वो हम लोग इस टॉपिक से समझ में आएगा हम लोग को. तो 25 A 80 P 11 V 35. 25 हमारा क्या होता है, इससे लर्न करने का भी एक ट्रिक है, मैं वो बाद में बताता हूँ आप लोगों को. 25 हमारे पास क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स. ये मैन्युफैक्चरर्स का प्राइवेट नंबर होता है यहाँ पे, जिससे वो जान सकते हैं एग्जैक्ट किस काइंड का एब्रेशन इस व्हील में यूज किया गया है. ठीक है, तो नोट डाउन करिए. मैन्युफैक्चरर्स private marking to know exact kind of aberration, exact kind of abrasive. Okay, manufacturers private
marking to know exact kind of abrasive. यहाँ तक क्लियर. इसके बाद हम हमारा ए क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव. हमारा ए क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव. टाइप्स ऑफ एब्रेसिव. ओके. 80 हमारे पास क्या बताता है, ग्रेट नंबर या फिर ग्रेन साइज. ये हमारे पास 80 क्या बताता है, ग्रेट नंबर और ग्रेन साइज. ग्रेट नंबर और ग्रेन साइज. ओके. पी हमारे पास क्या बताता है, पी हमारे पास क्या बताता है, हार्डनेस. पी हमारे पास क्या बताता है, हार्डनेस. 11 हमारे पास क्या बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ द व्हील. स्ट्रक्चर ऑफ व्हील. वी हमारे पास क्या शो करता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड. और लास्ट में हमारे पास 35 क्या बताता है, प्राइवेट मार्किंग टू कीप व्हील्स रिकॉर्ड. ये हमारे पास क्या बताता है, प्राइवेट मार्किंग्स टू कीप व्हील्स रिकॉर्ड. प्राइवेट मार्किंग्स टू कीप व्हील्स रिकॉर्ड. तो ये हमारे पास आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स आ चुका है. इसे हम लोग एक ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं. ट्रिक इज, आप मीन्स एब्रेसिव, आप ग्रेट हैं, सॉरी है मीन्स हार्डनेस. आप ग्रेट हैं सर बहुत. ओके. आप ग्रेट हैं सर बहुत. ये जो हमारा ट्रिक है, आप स्टार्टिंग विथ ए मीन्स टाइप ऑफ एब्रेसिव, ग्रेट मीन्स जी मीन्स ग्रेट नंबर और ग्रेट साइज, है मीन्स हार्डनेस, एच सर स्टार्ट विथ एस मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द व्हील, एंड बहुत स्टार्ट विथ बी, दैट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड. ओके. तो इस तरह से हम इसे लर्न इजी वे में कर सकते हैं. ठीक है. अब आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एब्रेसिव के ऊपर. आगे हम लोग टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, what are the different types of abrasive. अब हम लोग कुछ पैरामीटर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील का स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्या पैरामीटर्स है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट पैरामीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट parameters of grinding wheel. We will study different parameters of grinding wheel. Okay. तो क्या क्या पैरामीटर्स है हमारे पास. फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव. फर्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव.
हमारे पास फर्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। ओके, तो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए विच इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Al2O3। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, एंड फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al2O3। तो प्लीज नोट डाउन about the abrasive of aluminum oxide that it is a relatively softer and tougher than all the other abrasives। ये जितना भी हम लोग अलग अलग एब्रेसिव ग्राइंडिंग्स में यूज करते हैं उससे जनरली ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इट इज रिलेटिवली softer it is relatively softer and tougher it is relatively softer and tougher than all the other abrasives, all the other abrasives। Okay, and where it is used, it is generally used for grinding iron and steel, and is used for grinding iron and steel, and it is used for grinding iron and steel। Let's come to the different second one, which is silicon carbide। Its molecular formula is SiC B SiC silicon carbide। It is relatively harder than aluminum oxide and is used during the grinding of brass, bronze and stainless steel। Relatively harder than aluminum oxide and is used during the grinding of brass, bronze and stainless steel। Just a second। After that, please note down during the grinding of steel, जब हम लोग स्टील का ग्राइंडिंग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील इज प्रिफर्ड
why we are preferring the aluminum oxide steel over the SiC wheel? Because नोट पॉइंट डाल के ये नोट कीजिए, जब भी हम लोग स्टील का ग्राइंडिंग करते हैं तो SiC व्हील को हम लोग प्रेफर नहीं देके एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील को प्रेफर क्यों देते हैं? ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ दिस व्हील, पहले नोट डाउन कीजिए, बिकॉज एक्स्ट्रा लोड जो हमारे ऊपर आता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील इजीली बियर कर लेता है। ठीक है, तो नोट डाउन करके नोट कीजिए, नोट डाउन करके लिखिए, नोट पॉइंट डाल के लिखना है। ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग during the grinding during the grinding of steel, aluminium oxide wheel is preferred over SiC wheel. Okay, because during grinding of the wheel of this wheel, very high impact load appear which the aluminum oxide grids withstand very easily. ओके, तो अभी आप लोग को समझ में आया होगा हम लोग क्यों स्टील का ग्राइंडिंग करते समय एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आया होगा कि स्टील का जब भी हम लोग को ग्राइंडिंग करना रहता है तो हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील को क्यों प्रीफर करते हैं। ठीक है, SI व्हील के रहते हुए। ठीक है, because during the grinding of this wheel very high impact load appear which the aluminium oxide grades withstand very easily. Okay, this is the main reason. क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो व्हील होता है वो सॉफ्टर होता है। ठीक है, देन SiC ग्रेड्स। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एब्रेशन विच इज CBN, मीन्स क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड. Coming on the third type of abrasive that is used in the grinding wheel is CBN, which stands for cubic boron nitride, okay. So please note down about the CBN that it is the next hardest known material to the diamond. It is the next hardest known material to diamond and is used to grind hard
and tough. It is used to grind hard and tough tool, steels, die steels, and very हार्ड कोटिंग्स. ओके, जहाँ पर भी हम लोग हार्ड कोटिंग्स का ग्राइंडिंग करना होगा तो हम लोग CBN क्यूबिक बोरोन नाइट्राइट का स्टील्स का हम लोग ग्राइंडिंग व्हील्स का यूज करेंगे. एंड कमिंग ऑन द लास्ट टाइप ऑफ एब्रेसिव विच इज डायमंड. डायमंड को भी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के रूप में यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करते हैं इसका, इस डायमंड का यूज कहाँ पे होता है? प्लीज नोट डाउन दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल एंड इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ. इट इज द हार्डेस्ट known material. It is the hardest known material and is used for grinding of non-ferrous alloys, carbide एंड सिरामिक्स. यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर? इसे मैं रब करता हूँ और आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्रेट साइज और ग्रेट नंबर पे. ग्रेट साइज एंड ग्रेट नंबर के ऊपर. ठीक है, व्हाट इज ग्रेट साइज एंड ग्रेट नंबर? सेकेंड वन इज grain. What is this second one? It's a parameter of grinding wheel. Okay, ये एक अलग पैरामीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील है. ग्रेन साइज और ग्रेट नंबर. ग्रेन साइज और ग्रेट नंबर. ओके, तो कोर्सर ग्रेन विल लीड टू larger metal removal, larger MRR metal removal rate, but surface finish will be poor, while the fine grain will lead to lower metal removal but very good surface finish. अगर हमें सरफेस फिनिश का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग फाइन ग्रेन्स का यूज़ करेंगे, और अगर हमें पुअर सरफेस बट लार्ज मेटल रिमूवल का यूज़ कर, मतलब जल्दी जल्दी ग्राइंडिंग करना है और कंप्लीट करना है हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस को, तो हम लोग कोर्सर ग्रेन मटेरियल को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए. कोर्सर ग्रेन्स विल लीड to larger metal removing rate but surface finish will be poor. Okay, while the fine grains will lead to low metal removing rate. तो हमारा कंडीशन पे के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हमें सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए तो हम लोग फाइन ग्रेन्स का यूज़ करेंगे, और अगर हमें सरफेस फिनिश से मैनेज कर सकते बट हमें लार्ज मेटल रिमूविंग रेट चाहिए होगा तो हम लोग कोर्सर ग्रेन का यूज़ करेंगे. ओके, विल लीड टू लोअर मेटल रिमूव बट वेरी गुड surface
very good surface finish. Okay. अब ग्रेन साइज और ग्रिट नंबर में क्या रिलेशन है, ठीक है, ग्रेन साइज और ग्रिट नंबर में क्या रिलेशन है, ठीक है। ग्रेन साइज इज quantified by grit number, which is inversely proportional to, इस सब में कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार आप लोग को रिवीजन करना है, काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा ग्रेन साइज अगर ले लो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ग्रेट नंबर के, ठीक है। ग्रेट नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज। ओके, तो अब हम लोग ब्रॉडली ग्रेन साइज, ग्रिड नंबर और उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में ग्राफ से इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसे मेरा ग्रेन साइज कोर्स, second one is medium, third one is fine, fourth one is very fine। तो ये हमारा डिफरेंट ग्रेन साइजेज है, ठीक है। तो हमारा ग्रेन साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रिट नंबर था, हमने अभी देखा है। तो कोर्सर ग्रेन साइज के लिए ग्रिट नंबर हमारे पास किसके रेंज में होता है, ग्रिट नंबर 10 to 24, and for medium it will be 30 to 60, and for fine it will be 70 to 180, very fine it will be। ओके, ग्रेट नंबर ये हमारे पास आ चुका है। और एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन की हम लोग अगर बात करें तो कोर्सर ग्रेन साइज का एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, रफिंग के लिए कर सकते हैं, मीडियम ग्रेन साइज का हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मीडियम ग्रेन साइज का मीडियम फिनिशिंग के लिए, मीडियम finishing, third one is finishing, and the fourth one is super finishing। अगर हमें सुपर फिनिशिंग टाइप का कुछ हमें अचीवमेंट करना हो तो हम लोग वेरी फाइन ग्रेन साइज का यूज़ कर सकते हैं, जिसका ग्रिट नंबर 220 to 600 के आसपास होगा। सुपर फिनिशिंग। ओके, तो यहाँ तक हमने आज के इस वीडियो में सेकंड दो टाइप के पैरामीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स के, दो टाइप के पैरामीटर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स हमने स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हमने दो टाइप ऑफ पैरामीटर्स को स्टडी किया, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचा हुआ जो भी हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स है उसे कवर करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ नहीं पसंद आया या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को इस वीडियो का नीड है उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाएं। और अगर आपको ऐसा वीडियो सेम टू सेम वीडियो आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल तक डायरेक्ट आए
तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।